بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوکہ نہ دیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی کو دھوکہ نہ دیں، دیانت اور امانت سے زندگی گزار، لین دین معاملات میں کبھی خیانت نہ کر۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، میرا زمانہ ہو یا میرے بعد کا زمانہ ہو، میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کہ اگر وہ میرا۔ دوستوں، جیسا کہ آج دنیا کا ڈیجیٹلائزیشن ہو گیا ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے اور اپنے سوالوں کا جواب سوشل میڈیا میں تلاش کرتا ہے، تو ایسے میں دین کے معاملے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ہر معاملے میں ہم محتاط ہیں، ہر چیز کو اس کے جو ماہر لوگ ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ایسا دیکھنا میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ بعض ایسے لوگوں سے جڑ جا رہے ہیں جو دین کے ماہر نہیں ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، اور کوئی کچھ نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ برادر لگا لیا ہے، اس سے بھی اس کو اٹریکشن مل گیا ہے، اور سوشل میڈیا یوزرز جو ہیں ان سے جڑ جاتے ہیں اور ان سے اپنے دینی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو وہ سارے بیچارے اپنی کم علمی کی بنیاد پر یا جو ان کو سمجھ میں آتا ہے یا جس مسلک کی وہ ترجمانی کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ایک صاحب ہیں، نام ہے برادر عمران، اور یہ غیر مقلدین فرقہ کے مبلغ ہیں، تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق کے عنوان سے ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ ان کے پروگرامز میں جو کوسچن ہوتے ہیں بہت سارے فکس ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو پرچیاں دے دی جاتی کہ بھئی یہ کوسچن کرنا، اور صاحب اس کی تیاری کر کے آتے ہیں اور اس کے اعتبار سے جو ہے اپنی چھانٹ کے نکل جاتے ہیں۔ خیر، تو پہلے دیکھتے ہیں برادر عمران صاحب سے کوسچن کیا گیا، ایک بہن نے پوچھا اور وہ جواب دے رہے ہیں، اور جواب میں ایک حدیث پڑھ رہے ہیں اور حدیث غلط پڑھ رہے ہیں۔ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم برادر۔ وعلیکم السلام۔ میں بی کام فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کچھ ڈفرینس ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی ڈفرینس ہے؟ جہاں تک قرآن سے ہم کو تعلیم ملتی ہے، قرآن نے صرف حکم دیا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ میں، کتاب طریقۃ الصلاۃ میں کہا صلو کما رأیتمونی صلی، صلو کما رأیتمونی صلی۔ ہاں دوستو، آپ نے سنا صلو کما رأیتمونی صلی، حالانکہ صحیح ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، حمزہ کے اوپر پیش ہے یعنی غمہ ہے، اس کو بیچارے بھول گئے۔ مقصد یہ تھا کہ جو آدمی صحیح سے حدیث پڑھ نہیں سکتا وہ آپ کی رہنمائی صحیح کیسے کر سکتا ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ آئیے آگے کی بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ میں، کتاب طریقۃ الصلاۃ میں کہا صلو کما رأیتمونی صلی، تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب حکم لگایا تو عربی جو زبان جانتے ہیں، عربی زبان جاننے والوں کو معلوم ہے کہ یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے کامن ہے۔ کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے، عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، یا کسی صحابی یا خلفائے راشدین نے ایسا کیا ہو یا امہات المومنین نے ایسا کیا ہو۔ یہ جو الگ الگ طریقہ بتاتے ہیں یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے سنا کہ ان کی منطق کے یہ جو حکم ہے وہ عربی جاننے والوں نے سمجھ لیا کہ سب کے لیے ایک ہی ہے، عورت مرد کے لیے ایک ہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ کہیں کوئی فرق نہیں ہے، خلفائے راشدین میں، صحابہ کرام نے، امہات المومنین نے، کہیں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ جو فرق کیا گیا ہے یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یتیم فی العلم، یتیم فی الفہم سے اب کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ چلیے ان کے جو سوالات ہیں، جو انہوں نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں، اس کا کچھ ازالہ کرتے ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ دوستوں، انہوں نے سب سے پہلے ایک حدیث پڑھی بخاری شریف کی جس کا نمبر 631 ہے، اور وہ حدیث نے پڑھی، حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، یعنی مکمل حدیث الگ ہے۔ مکمل حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے اس پہ خیانت کی، اس کو بتائی نہیں آپ کو، یا اسی طریقے سے جتنے بھی غیر مقلدین کے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، فلانا ہے، ٹھمکانا ہے، سب کی بات آپ سنیں گے، سب یہی کہیں گے صلو کما رأیتمونی اصلی، بس اسی کو پیش کریں گے، حالانکہ یہ بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور جیسے قرآن شریف میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اس کے آگے کا اگر ہم نہیں بتائیں گے، پیچھے کا نہیں بتائیں گے، تو اس سے لوگ
शुबा में पड़ जाएंगे, गुमराही में पड़ जाएंगे। इसी तरीके से यही इन्होंने इख्तियार किया, इस हदीस के आगे पीछे को छुपा करके बीच में से एक जुमला निकाल करके आपको बता दिया। तो हम आइए आगे आपको बताते हैं कि ये तफसील में हदीस क्या है और इसका खुलासा क्या है, इसमें क्या क्या अहकामात है। बुखारी शरीफ से मुलाहजा फरमाइए। बात है तो अधूरी न रह जाए। हमारा अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का नजरिया है, मर्द की नमाज अलग है, औरत की नमाज अलग है। मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है। जो कहते हैं मर्द औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, आप यकीन करें, मैंने कहा बात तवज्जो से समझना, हम मर्द औरत की नमाज में फ़र्क के कायल हैं। वो कहते हैं जी फ़र्क नहीं है। हमने कहा फ़र्क क्यों नहीं है? इसी हदीस में है, कहता है सही बुखारी में है और ये रिवायत बड़ी वाज़ेह है। मैंने कहा रिवायत पढ़ के सुना, कहते हैं रिवायत ये है, अभी ये हदीस से मुबारक मालिक बिन हुवैरिस के रावी है, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। ये अल्लाह के नबी ने खिताब मर्दों को भी किया है, ये खिताब औरतों को भी किया है। तो मर्दों को भी हुक्म है नमाज नबी की तरह पढ़े, औरतों को भी हुक्म है नमाज औरतों की तरह पढ़े। जब खिताब दोनों को है, तुमने फर्क कैसे किया है? मैंने कहा बात याद रखना, जो बंद का नजरिया है, अगर कुरान अधूरा हो अकीदा अधूरा है, अगर कुरान पूरा हो तो अकीदा भी पूरा है, अगर पैगंबर की हदीस पूरी हो तो मसला भी पूरा है, अगर हदीस अधूरी हो तो मसला अधूरा है। हम अधूरे दीन की बात नहीं करते, हम तो भाई भिंड वाले हैं, हम तो पूरे दीन की बात करते हैं। हमें तो हिदायत दी जाती है, खुदा ने कामयाबी पूरे दीन पे चलने पे रखी है। कहते जी क्या माना? मैंने कहा अधूरी हदीस तो न पढ़ना। इस हदीस मुबारक में है, सहाबी कहते हैं हम अल्लाह के नबी की खिदमत में है, कुछ दिन गुजर गए, हम नौजवान आदमी थे, अल्लाह के नबी ने महसूस किया इनको घर जाने की हाजत है। अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि तुम इरजिउ इला अहलिकुम, अपने घर चले जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबी खुद कहता है हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं थे, पता ये चला ये हुक्म उन्हें था जो नबी को देख रहे थे, वो घर वालियां नहीं, वो घर वाले थे। घर वालियां घरों में थी, घर वाले नबी की खिदमत में थे, खिताब उन्हें किया है। ये औरतों को खिताब ही नहीं है। कहते हैं लफ्जों के अमूम को देख लो, लफ्ज तो आम है, खिताब दोनों का है। मैंने कहा फिर अधूरी हदीस न पढ़ेगा, हदीस आगे भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज तुमने यूं पढ़नी है जैसे मुझे पढ़ते देखा, लेकिन जब तुम सफर में चलो तो तुम में से एक आदमी अजान भी दे, फल उम्मकुम अकबरकुम, और तुम में से बड़ा इमामत भी करे। तो मैंने कहा फिर हदीस में तीन चीजें होंगी। नंबर एक सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुस्तफा को पढ़ते देखा है। नंबर दो, अल्लाह के नबी ने फरमाया फल युअज्जिन लकुम अहदकुम, तुम में से एक बंदा अजान भी दे। नंबर तीन, फल युअम्मकुम अकबरकुम, तुम में से बड़ा इमामत भी करे। तो मैंने कहा फिर चलो, अगर इस हदीस में खिताब आम है तो खिताब आम ही मान लेते हैं, किसी मस्जिद में मुअज्जिन औरत भी रख लो। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया तुम में से एक अजान भी दे, खिताब आम है, कभी अजान मर्द दे कभी अजान औरतें दे, ताकि हदीस पे अमल तो हो रहा। फरमाया तुम में से बड़ा इमामत करे, तो कभी इमामत के लिए तुम्हारे दादा जान खड़े हो, कभी दादी जान खड़ी हो, कभी उस्ताद जी खड़े हो, कभी उस्तानी साहबा खड़ी हो। लोग पूछे क्यों? कहना बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के नबी ने हुक्म सबको दिया है। हमने एक मस्जिद में मुअज्जिन लड़का रखा है, एक में लड़की रखी है, एक में इमाम मर्द रखा है, एक में इमाम औरत रखी है, ताकि पूरी हदीस पे अमल तो होना। मैंने कहा फिर तुम्हारी बात को मान लिया जाए। तो तुमने कहा नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नबी ने पढ़ी है। तो मैंने कहा पैगंबर की नमाज नंगे सर वाली है या पगड़ी वाली है? कहा जी पगड़ी वाली है। मैंने कहा फिर एक पगड़ी रख के दादी जान के सर पे भी रख दो, कहना ये नबी जान वाली नमाज है। हमें समझ तो आए ना, तुमने अमल हदीस पे किया है। जब नमाज पढ़ते हो तो मुझे पता तुमने टखने नंगे करने हैं या ठान के पढ़ने हैं? कहा जी नंगे। तो मैंने कहा फिर नबी की तरह पढ़ना है। फिर भाभी जान को कह दे जो सलवार आदि पिंडली तक उठा ले, नमाज नबी की तरह तो पढ़ेगा। फिर जब तुमने सफे में लानी है तो तुम कहते हो टखनों से टखने में ला दो, इधर भाई जान खड़े हैं, इधर भाभी जान खड़ी है, तो जी टखनों से टखने में ला दो। मैंने कहा क्या नमाजों में रश हो जाए, मुअज्जिन कभी मुअज्जिना औरत हो, मुसल्ले पे औरत खड़ी हो, इधर तकबीर कहने वाले भी औरत हो, उधर सर से नंगी खड़ी हो, उधर टखने से टखना मिलाया हो, आधी पिंडली नंगी हो। मैंने कहा ये नबी वाली नमाज है। कहते हम तैयार नहीं है। तो मैंने कहा फिर देवबंद वालों की बात मान लेना। हमने कहा सल्लु कमा रअयतमूनी, ये हुक्म मर्दों को है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। जी हाँ दोस्तों, आपने मुतकल्लिम इस्लाम से तफसील से सुना कि हदीस क्या है और इन्होंने काट छाँट करके उसमें से क्या पेश किया है। ख़ुलासा यह है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ एक जमात थी नौजवानों की, जो मदीना मुनव्वरा आए, कुछ दिन वहाँ पर क़याम किया, दीन को सीखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा आप घर को लौटो, और वो पूरी हदीस है जिसमें 6-7 अहकाम बयान किए कि जब तुम घर को जाओ तो अपने घर वालों के दरमियान ठहरो, उनको दीन सिखाओ और
तुम जब जा रहे हो तो तुम्हारे साथ जो है नमाज का भी वक्त होगा, तो तुम में एक आदमी जो है अजान कहे और एक आदमी जो तुम में से बड़ा हो वो इमाम बन जावे। तो ये बहुत सारे अहकामात में से उन्होंने सिर्फ बीच का निकाल करके आपको पेश कर दिया। अब आगे आते हैं असल मामले के तरफ और उनके दलाइल के तरफ। मुलाहज़ा फरमाएं। जी दोस्तों, आपके स्क्रीन पे देखिए कि किताब का सिरे वर्क आ रहा है, फर्स्ट पेज है। किताब का नाम है औरत और मर्द के नमाज के मसाइल में तफसीली जायज़ा। मुनीर अहमद मुनव्वर साहब, हज़रत मुफ्ती साहब ने इसको लिखा है। बहुत अच्छी किताब है। आपको जान कर के ताज्जुब होगा कि 21-22 ऐसे मसले हैं, यानी औरत और मर्द के दरमियान नमाज में फ़र्क के ऐसे मसाइल हैं जिसमें गैर मुक़ल्लिदीन भी मुत्तफ़िक़ हैं। उस टाइम में सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली नहीं पेश करते, बल्कि इसको मानते हैं। उन्होंने बज़ाब्ते जो है एक टेबल बना करके आपको समझाया है कि इसमें ये फ़र्क को ये भी मानते हैं। कुछ फ़र्क ऐसे है जिसको नहीं मानते हैं, उसके बारे में जो दलाइल हैं उसको उन्होंने वाज़े किया। पहले अइम्मा अरबा के बारे से उसको उनके कुतुब के हवालों के साथ इसको बताया है। फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन से ताबईन, तबा ताबईन, यानी कि सलफ़ सालेहीन हर जगह से जो है दलाइल पेश किए हैं। तो ये किताब बहुत अच्छी है। आप इसको डाउनलोड करें, पढ़ें और अपने हल्के में इसको शेयर भी करें। और ऐसे लोग जो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली पेश करके एक अधूरा मामला पेश करके लोगों को गुमराह करते, उनको भी किताब पढ़वाएं ताकि उनके समझ में ये घुसे कि ये फ़र्क कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे हैं। आखिर में आपसे अर्ज़ करता चलूँ, इल्ज़ामी तौर पर के बताऊँ कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लंबी हदीस में एक जुमला ये फ़रमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझको नमाज़ पढ़ते देखा वैसे ही नमाज़ पढ़ो। हालांकि वो मालिक बिन हवेरस और उनके साथियों को, मर्दों को कहा था। खैर, इसके बरखिलाफ़ अगर हम इसको चलो इनकी बात मान भी लेते हैं तो इन्हीं पे इल्ज़ामी जवाब जो है ये डालते हैं कि खुज़ू मनासिकुकुम। हज के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज के जो मसले हैं, मनासिक हैं, वो हमसे सीख लो और वैसे ही अदा करो। क्या इसमें तफरीक़ करने की कोई गुंजाइश है? कोई हदीस है? कहीं पर लिखा है? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि तवाफ़ में शुरू के 3 चक्करों में रमल किया जाता है। मर्द ही जो है सीना निकाल करके तेज़ भागते हैं और सई के दौरान जो है मीलाइन अहदरैन में भी तेज़ भागते हैं। तो अब ये है कि अपनी औरतों को भी इसी तरीक़े से कराएंगे? माज़अल्लाह नहीं कराएंगे, क्योंकि औरत और मर्द में जैसे जिस्मानी तौर पर फ़र्क है, ऐसे ही जो है बदनी इबादात में भी मसाइल में फ़र्क है और उसके मुस्तकिल दलाइल हैं। ये किताब को मैं फिर से दावत दूंगा कि किताब को आप ज़रूर पढ़ें और इसको शेयर भी करें। और ऐसे जो यानी कि कम दिमाग लोग हैं इनको भी ये पहुँचाए ताकि उनके दिमाग की बत्ती जले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह,